Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on business valuation, which is topic of capitalization method. So let us see data given in this scenario. So we are given Sun Limited has equity share capital of rupees 200 lakhs divided into shares of rupees 50 each and 10% preference share capital of rupees 140 lakhs divided into preference shares of rupees 100 each. The market price of equity share for current year ending on 31st March is rupees 140 per share and price earning ratio was 8 times. Tax rate for current year ending 31st March is 30%. So further, the profits for the current year have been calculated after considering the following items in profit and loss account. तो इट मीन जो भी प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है जिसे आफ्टर कंसीडरिंग दीज आइटम्स नंबर 1 subsidy of rupees 4 lakh is received from the government towards fulfillment of certain social obligations which will not be received in future. Secondly, interest of rupees 10 lakh is on term loan. The final settlement of this term loan was fully settled in this year. It means in future now this interest will not be paid because the loan has been totally repaid. Managerial remuneration of rupees 18 lakhs. The shareholders have approved an increase of rupees 8 lakhs in the overall managerial remuneration from the next year onwards. So in future, company will have to pay additional remuneration of rupees 8 lakhs. Loss on sale of fixed assets amounting to rupees 10 lakhs. और एक आपका एसेट्स आपने सेल की थी उसमें लॉस है रुपीज 10 lakhs. The existing operations except for the extraordinary items are expected to continue in future. तो ये जो भी हमने extraordinary item डिस्कस किए हैं and against this our normal operation will continue in future and further the company has launched a new product during the year with the following expectations. So from this new product there will be sale of rupees 150 lakhs. Material cost will be 40, labor cost is 34, fixed costs including allocated overhead of rupees 6 lakh, total will be 30. And future tax rate is estimated at 25%. तो ये आपको डाटा दिया है. Now they are asking different MCQ. Number 1, we have to calculate the capitalization rate, means cost of capital of Sun Limited for current year ending 31st March. तो सबसे पहले आपको देखना है कि वट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सेकंड एमसीक्यू इज कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट ईयर. तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा वो आपने कैलकुलेट करना है. नंबर थर्ड एमसीक्यू इज देयर आस्किंग कंप्यूट वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ सन लिमिटेड, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू. फिर आपने बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फोर्थ एमसीक्यू इज कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर ऑफ सन लिमिटेड. फिर आपने देखना है शेयर का कितना प्राइस है. तो स्टार्ट करके हैं. देखो डाटा सबसे पहले आपको मेंशन किया है इक्विटी कैपिटल है, उसका मार्केट प्राइस भी दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपको मेंशन किए हैं और प्राइस अर्निंग रेशियो आपको मेंशन की है. प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है तो उसके बेस पे कैलकुलेट करके हैं. नंबर 1 व्हाट इज एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट. So let us say MCQ number 1. So what is the capitalization rate? तो किसी जाल से कहा जाए जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो उसके लिए एक टेबल ड्रॉ करके हैं तो आपको कैपिटल के जो सोर्सेज है वो मेंशन किए हैं. सो कैपिटल में आपको मेंशन किया है नंबर 1 वी हैव इक्विटी यानी कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो रुपीज आपके हैं लैक्स में. First, let us see what is their book value. So equity capital is rupees 200 lakhs. This is 200 lakhs. Equity capital है आपका rupees 50 each. Preference share capital is 140 lakhs. But we calculate weighted average cost of capital on the basis of market value weights. Let us see what is market value. So if this money is available, rupees आपके है lakhs में. इक्विटी के देखो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 4 लाख. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन दिस इज 140 पर शेयर. सो मार्केट वैल्यू विल बी 560 lakhs. प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू मेंशन नहीं की, इट मीन्स ये आपकी सेम रहेगी. तो दिस विल बी अवर टोटल कैपिटल. तो टोटल कैपिटल एट मार्केट वैल्यू इज अवर 700 lakhs.
तो उसके बेस पर आप इसके वेट से डिटरमिन कर सकती हैं। तो what will be weights? This is our 0.8 and 0.2. So now let us see what is cost of equity. कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, पर आपको सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशो मेंशन की है, तो इट मीन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो। तो दिस इज 1/8 which is 12.5%. And what is cost of preference share? That is rate of dividend, this is given 10%. So now you can apply what is the cost of capital of each source. So cost of equity 12.5%, ये आपकी है परसेंटेज में, एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज 10%. So now we get what is the weighted average cost of capital, which is called the capitalization rate, KO. So formula is KE into weight of equity plus KG into weight of debt. So KE is 12.5 into 0.8, so plus 10 into 0.2. So this one is coming 10 plus 2. So this is 12% capitalization rate. Then you can see which option is correct. Answer is option number B is correct. Then we have the second MCQ. In this case, we have to calculate future maintainable operating profit after tax. So this is our future maintainable profit, and this is after tax. And this we have to calculate operating profit, which is also called as NOPAT. तो उसके लिए आप देखिए पहले वकील करंट प्रॉफिट आपका कितना है फॉर करंट ईयर एंडिंग. So like you are given price earning ratio. Price earning ratio का फार्मूला क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन EPS. तो इसमें प्रॉफिट आपका मिसिंग है, तो EPS आपकी कैलकुलेट हो जाएगी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू MPS अपॉन प्राइस अर्निंग रेशो. MPS आपको मेंशन किया है, शेयर का प्राइस है 140, प्राइस अर्निंग रेशो है आपकी 8, तो यू विल गेट अर्निंग पर शेयर. तो किस में 140 डिवाइडेड बाई 8, 17.5, ये आपकी है रुपीज पर शेयर. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट हाउ मच इज टोटल प्रॉफिट फॉर इक्विटी. अब देखिए EPS का जो बेसिक फार्मूला है, जिस प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको मेंशन किए हैं, 200 लाख का कैपिटल है, 50 रुपीज़ का शेयर है, जिसे 4 लाख शेयर्स है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो प्रॉफिट फॉर इक्विटी इज EPS 17.5 इंटू 4 लाख इज शेयर्स इंटू 4, तो जिसे कमिंग रुपीज 70. तो फिगर आपके चल रहे हैं लैक्स में. तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी होता है. अब आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं पैट. तो नाउ यू राइट प्रॉफिट फॉर इक्विटी, तो जिसे रुपीज आ रही है ना लैक्स, जिसे 70. प्रॉफिट फॉर इक्विटी होता है आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, सो दैट विल बी एडेड बैक. सो एड बैक प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो आपको मेंशन किया है 140 लैक्स, और दिस डिविडेंड ये 10%, so this will be 14. It means this will become our profit after tax PAT. This is 84 lakhs. So current year का tax rate है आपका 30%. So it means now you will get to PBT is equal to PAT divided by 1 minus 30%. So 84 upon 0.7. So 84 upon 0.7. So this is 120 lakhs. अब इसमें एडजस्टमेंट कर रखे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लॉसेज हैं या गेन्स हैं, तो वो आपके एडजस्ट हो जाएंगे. सो वी हैव टू ऐड बैक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज में देखो, एक को आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा टर्म लोन का, और एक आपका है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो नंबर 1 इट विल बी एडेड बैक इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, यानी कि ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. So this is 10 lakhs, this is also 10 lakhs. और लेस कर दीजिए, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके गेन्स हैं, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन. तो इन दिस केस नंबर 1 इज सब्सिडी, तो आपको 1 टाइम सब्सिडी मिलेगी इसमें, जिस बार 4 लाख. और एक आपको लेस करना है एडिशनल जो एक्सपेंस होगा फ्यूचर में, लेस एडिशनल एक्सपेंस इन फ्यूचर.
get it on account of managerial remuneration. So we will have to pay additional remuneration 8 lakhs. So let us see how much is this. So this money is coming 120 plus 20, 140 minus 12. This is 128. It means this balance brought forward is let us write 128. फिर आपको मेंशन किया है कि अब फ्यूचर में अब हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उससे भी आपको मिलेगा एडिशनल प्रॉफिट, तो वो आप ऐड कर लीजिए। प्रॉफिट फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट, सो सेल्स आर गिवन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, इट विल बी 150 लैक्स। उसमें से माइनस कीजिए मटेरियल कॉस्ट माइनस अवर एडिशनल लेबर कॉस्ट 34। फिर आपको देखो मेंशन किए हैं ओवरहेड्स होंगे आपके 30, बट इट इंक्लूड्स एलोकेटेड ओवरहेड। एलोकेटेड हो गए जो पहले भी हो रहे थे, तो एडिशनल ओवरहेड्स हैं आपके 24 लैक्स। तो ओनली एडिशनल वी विल कंसीडर। So let us see how much is this profit, 150 minus 40 minus 34 minus 24. This is coming 52. It means ये आपका आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट FMP, दिस इज बिफोर टैक्स। तो माइनस कर लीजिए टैक्स। अब फ्यूचर में टैक्स आपको मेंशन किया है एट द रेट ऑफ 25%। सो दिस मनी जो 128 प्लस 50 को 180 इनको 25%, दिस इज 45। तो बैलेंस इज अवर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सो दिस मनी कमिंग 135 लैक्स। तो रुपीज हैं आपके लैक्स में। देखिए आल्सो कार्गो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नो पैट। So you can see which option is correct. In this case option is C. So answer is option number C is correct. ये जो हम MCQ कर रहे हैं सिग्नेचर बेस्ड पास एग्जाम क्वेश्चन, इसमें MCQ के थ्रू आपका फुल सिलेबस भी आपका रिवाइज हो जाएगा इजीली। सो लेट अस सी नेक्स्ट MCQ नंबर 3. So in this case they are asking complete value business of Sun Limited. It means that is enterprise value. अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ सन लिमिटेड। तो वैल्यू बिजनेस में आप देखिए आपको लाइफ मेंशन नहीं की, इसमें परपेचुअल लाइफ है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। इन दैट केस वी कैन अप्लाई कैपिटलाइजेशन मेथड। एज पर दिस मेथड वैल्यू बिजनेस इज इक्वल टू, इसमें आप देखिए कोई ग्रोथ भी मेंशन नहीं की, दैट इज इक्वल टू नोपैक, उसको आप कर दीजिए कैपिटलाइज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्निंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नोपैक देखो आपने कैलकुलेट किया है रुपीज 135 लैक्स, सो डिवाइडेड बाय दिस इज 12%। सो दिस विल बी अवर टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। सो 135 डिवाइडेड बाय 12%। 12% हमने पहले ही कैलकुलेट किया था MCQ1 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज कमिंग रुपीज 1125 लैक्स। This is our total value of business, which is also called as enterprise value. So you can see which option is correct. Answer is option number A. So next they are asking MCQ number 4. Calculate expected market price per equity share of Sun Limited. अब अपने पर शेयर के प्राइस कैलकुलेट करना है। दिस इज MCQ नंबर 4. वट इज अवर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ दिस कंपनी सन लिमिटेड। तो उसके लिए पहले देखो इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आप मेंशन कीजिए व्हाट इज टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ सन। रुपीज आपके हैं ये लैक्स में। दिस वी हैव कैलकुलेटेड 1125। अब उसमें से आप लेस कर लीजिए, इसमें कोई गैप नहीं है, बट देयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसकी जो भी वैल्यू आपको मेंशन की है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जिसकी वैल्यू क्या है बुक वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दी है 140 लैक्स। तो बैलेंस आपकी आ जाएगी इक्विटी वैल्यू, जिसकी कहा गया टोटल इक्विटी वैल्यू ऑफ फर्म। तो 1125 माइनस 140, तो जिसकी 985 लैक्स। Then you can see what are number of equity shares. Number of equity ये आपको मेंशन किए थे। सो दीज में आ रहे 50 रुपये का शेयर है, टोटल कैपिटल है आपका 200 लैक्स, तो डिवाइडेड बाई 50, सो दिस इज 4 लाख शेयर। सो टोटल इक्विटी वैल्यू को डिवाइड कर रखे हैं नंबर ऑफ शेयर से, दिस विल बी मार्केट प्राइस पर शेयर, दिस इज 985।
divided by 4. So this is coming rupees. So 246.25. Now you can see which option is the correct answer is option number C. So in this lecture we discuss case scenario on business valuation. Further copies we will continue in the next lecture से. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.